Girls, now in this video we will discuss the negative or whatever the disadvantages of trading with the Pakistan and the European Union. Some of the disadvantages may occur, and however, I'm going to start reading. However, there are certain disadvantages of developing more trade agreement with European Union countries, such as Pakistan may face inaction due to increasing terrorism and declining law and order condition. You know that Pakistan's condition ओवरऑल एंड समटाइम ये है कि पाकिस्तान को ये सिलेक्शंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं. पाकिस्तान एक्सपोर्ट फेस restriction due to environmental concern and child labor issue. Product of cotton and small scale industries lack of standardization. They may not be approved by European Union countries. Trade agreement with the European Union countries may be affected due to Pakistan trade agreement with other countries. For example, Pakistan import a lot of low price consumer goods from the China that meet the local demand. Import from United European Union's countries may not able to compete with low price Chinese good in the local market. Pakistan export are mainly from agro-based industries and agriculture production is unreliable due to dependence on the natural factor. The trade agreement may not forward due to frequent change in the government policies and growing political instability. पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर सी बात है अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकली भी हम लोग देखते हैं कि रहती है. क्विक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट भी है, कंसिस्टेंसी नहीं है इन द लॉज ऑफ द इकोनॉमी और वट एवर द ट्रेड लॉज जो किसी भी कंट्री के सेट होते हैं. दूसरा है कि पाकिस्तान जो चीज़ें हम ख़रीदने की हमारी कैपेसिटी है वो चाइनीज़ गुड्स हैं जो कि ज़ाहिर चीप हैं. लोकल डिमांड उनकी इस तरह से नहीं है. जो यूरोपियन यूनियंस की चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हैं. जो नॉर्मल चीज़ें हैं या जो टॉयज़ हैं या जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं तो चाइना हमें ज़्यादा सूट करता है रिगार्डिंग दिस. तो ये डिसएडवांटेज है कि पाकिस्तान उनकी वो महंगी चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता. दूसरा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो मेनली एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है. और किसी टाइम में भी आपको पता है हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, नेचुरल फैक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं, कभी ड्रॉट्स हैं. तो उसकी वजह से एक मिनी पेट प्रोडक्शन नहीं है जिसकी वजह से ओवरऑल यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं उनका एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे नहीं रहता. तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. ये बच्चों 4 मार्क के दोनों आ सकते हैं आप लोगों को. The next topic is about the opportunities and challenges for Pakistan resulting from its membership of the World Trade Organization. पाकिस्तान वैसे तो 1948 में एक इंस्टीट्यूशन था यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स. ये 48 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था. और फिर जो है 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक नया इदारा था, नया इंस्टीट्यूशन था, ये वजूद में आया. इसके साथ जब आप मेंबर हम इसके बन जाते हैं, हम सिग्नेटरी हैं, हमने साइन किए हुए हैं विद द ऑल वर्ल्ड कंट्रीज़. तो उसकी वजह से पाकिस्तान को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ ये इदारे या ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, बेसिकली ये वो हैं. बट जो इसमें क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, यानी 6 मार्क्स का. यूजुअली एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन नहीं आता. तो स्टिल हमारा एग्जामिनेशन का पार्ट भी है, बुक का पार्ट भी है, वी हैव टू डू इट. सो अब इसमें ये है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो फ्री ट्रेड अलाउ करता है बिटवीन इट्स मेंबर कंट्री by reducing or abolishing certain restriction imposed by the government of these countries on their export and imports. It came into being in 1995. It is the successor of General Agreement on Tariff and Trade (GATT) established in the wake of Second World War in January 1948 to boost trade liberalization. After December 2004, Pakistan economy was exposed to new challenges relating to the international trade as a result of Pakistan being one of the signatory of WTO along with 146 countries. The WTO calls for tariff reduction. Tariff is scheduled or duties, taxes imposed by the government, especially on imported goods in free international trade. 2004 में पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी बना और इसमें और भी 146 कंट्रीज़ इसके साथ शामिल थे. और इसमें जो है वो देखें, टैरिफ्स वो होते हैं जो हम जैसे पाकिस्तान बाहर से गाड़ियाँ मंगवाता है, हेवी मशीनरी है, मैकेनिकल गुड्स हैं, उन सब पे हेवी टैक्सेशन इम्पोज होती है. तो जब आप WTO के सिग्नेटरी हम बने हैं, उसके मेंबर बने हैं,
तो टैरिफ्स में काफ़ी हद तक कमी देखने में आएगी, और कुछ कंट्रीज़ के साथ आपके वो टैरिफ्स और वट एवर यू कैन से द टैक्सेस वो आपके फ्री हैं, वो माफ़ हो जाएंगे. After joining the WTO, Pakistan's accessibility into the international market would be on the basis of competitiveness. This therefore put Pakistan foreign trade on the level with other countries. WTO के साथ ज़ाहिर है बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं पाकिस्तान को अपने आप को बेहतर करने के लिए, ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना कोई मकाम बनाने के लिए. बच्चों, these are the opportunities and challenges of WTO membership for Pakistan in the area given below. Cotton textile industry, this has to be reorientated to produce better quality cotton, yarn, fine cloth and value added products. यानी सबसे ज़्यादा इंसेंटिव हमें मिला है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बेस है, 70% लीडिंग एक्सपोर्ट है. सो इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरह से प्रोड्यूस किया जाए जिससे फ़ाइन कॉटन एंड स्पेशली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यू कैन प्रोड्यूस. पाकिस्तान हैज़ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड. ये एक हकीकत की बात है. द स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टेक्सटाइल मस्ट बी मेंटेन थ्रू मॉडर्नाइजेशन and replacement of outdated industrial machinery. Agriculture has to cope with the WTO standard. We have to open domestic market for foreign agriculture producers, to eliminate the domestic support on agriculture products, to withdraw the export subsidies. Because of an inflow of cheap imports and decreased export of agriculture products, there could be devastating effect on our rural population and domestic industry. It may lead to increased unemployment and reduction of revenue of the government. बच्चों, यहाँ पे दे आर सेइंग कि हमारे पास एग्रीकल्चर क्योंकि कंट्री है पाकिस्तान, तो WTO ने इसको कोप अप करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर किए हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में पाकिस्तान की या ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान अपनी एक पहचान बहरहाल बना सके. तो दीज आर ऑल द इंसेंटिव्स. इसमें से आप कोई से फोर कीजिएगा जिसमें सर्विस सेक्टर है,